Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi, going to present fourth video in the videos of Group C on the provisions of Civil Procedure Code 1908. In this lecture, we will discuss on the provisions of set off and counter claim, the special pleadings by the defendant. There are two kinds of set off: legal set off, Order 8 Rule 6, equitable set off, Order 20 Rule 19 Rule 3. While counter claim, the provisions related to counter claim have been laid down in Rule 6A to Rule 6G of Order 8, which have been inserted through the Amendment Act 1976. मित्रों, हम लोग इस लेक्चर में तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, मुख्यतः दो: मुजराई और प्रतिदावा। ये दोनों ही प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के बदले में जब वो अपना विवचन करता है, तब उसके लिए उसके बदले में किए जाने वाला विशेष विवचन है। ओके, मुजराई दो प्रकार की होती है: विधिक मुजराई आदेश 8 नियम 6 और सामयिक मुजराई आदेश 20 नियम 19 खंड 3 रूल 3। जबकि प्रतिदावा आदेश 8 नियम 6 क से 6 तक है, जो कि 1976 के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ओके, व्हाट हैव टू बी डिस्कस्ड हियर? जस्ट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ set off with illustration, the essential elements of counter claim with illustrations, okay, and differences between legal set off, equitable set off and legal set off and counter claim. okay, हम लोगों को इस लेक्चर में केवल इतनी सी बातें पढ़नी है: सेट ऑफ क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट विद इलस्ट्रेशंस एंड इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ, देन डिफरेंस बिटवीन द लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, ओके, विद इलस्ट्रेशन ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ। ओके, हम लोगों को उसमें पढ़ना है विधिक मुजराई के आवश्यक तत्व और दृष्टांत, इसका प्रभाव, और सामयिक मुजराई से इसका अंतर, सामयिक मुजराई का भी दृष्टांत। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड टू डिस्कस ऑन द एसेंशियल एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम विद इलस्ट्रेशंस and effect of counter claim, okay, and then we have to differentiate legal set off from counter claim, ठीक है, और फिर हम लोगों को विधिक मुजराई को प्रतिदावा से अंतर करना है। so it is very interesting but easy topic. Actually, primarily you should call set off, legal set off and counter claim as counter claim. Okay, first you should know all the three claims as counter claim. Counter claim means claim against claim. Counter claim means a claim by defendant through written statement against the claim by plaintiff in the plaint through the plaint. Counter claim क्या है? Counter claim means actually all things are counter claim. All things are counter claim. Set off is a specific kind of counter claim. Okay, so this is set off and this is counter claim. First we have to understand what is counter claim. Claim against claim is counter claim. प्रतिदावा क्या है? दावे के बदले में दावा प्रतिदावा है। मुजराई भी एक प्रकार का प्रतिदावा है। Okay, if all the essential element
of Rule 6 are present there, then the counter claim is set off. Okay? If not all the essential elements provided in Rule 6 of R8 are present there, but the element provided in 6A are present there, then it is counter claim only. Literally, set off is a kind of counter claim. Though the provisions on set off is original, while on counter claim have been inserted through the Amendment Act 1976. भले ही प्रतिदावा के प्रावधान संशोधन से 1976 में जोड़े गए हैं, जबकि मुजराई के प्रावधान मूल संहिता के हैं, फिर भी मुझे यह कहना होगा कि अगर दोनों को हमें चित्र के फॉर्म में, पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाना होगा, then this would be the right picture. Counter claim and some of the counter claims are set off. So primarily, I have to discuss the meaning of counter claim on the basis of meaning of the term of counter claim. Okay? What is counter claim? Through plaintiff makes a claim or claims against defendant. वादी वाद पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के विरुद्ध दावा या दावे करता है. Defendant may either accept the claim or claims made by plaintiff, or deny the claim or claims made by the plaintiff, or may partially admit and partially deny the claims made by plaintiff, or whether accepting or denying, he makes his own claims against the plaintiff. If in written statement, if in the pleading, if in his pleading, defendant makes some claims against plaintiff, then it is a kind of cross suit, because generally defendant is summoned to answer the claims made by plaintiff, not to raise his own claims against plaintiff. सामान्यतः वाद में जो समन होता है वो किस लिए होता है कि प्रतिवादी वादी के दावे का जवाब दे, न कि अपना दावा करे. बट Rule 6 or Rule 6A allows defendant to make his own claims also, for which he can file a fresh suit, he can file a cross suit against the plaintiff. जिसके विरुद्ध वो अपना वाद कर सकता था, जिसके लिए वो वादी के विरुद्ध अपना वाद कर सकता था, उसे भी वो चाहे तो लिखित कथन में जगह दे दे. The provisions of set off or counter claim have been provided to avoid multiplicity of litigation and to empower the court to adjudicate a case on the basis of claims made by the both parties. ये मुजराई और प्रतिदावा का जो प्रावधान किया गया है वो इसीलिए किया गया कि ताकि वाद बहुलता से बचा जा सके. नहीं तो एक दावा वादी करेगा, फिर वहां वादी का दावा निपटाया जाएगा, फिर एक अलग से दावा प्रतिवादी करेगा अलग दावा अलग वाद के रूप में, फिर उसको भी कोर्ट निपटाएगा. तो इससे वाद बहुलता होगी. लेट द डिफेंडेंट मेक हिज क्लेम इन his written statement and let the court adjudicate both the claims which have been made by the adverse parties against each other in the same litigation. On this concept, the provisions of set off or of counter claim have been provided. इसी संकल्पना पर मुजराई और प्रतिदावा के प्रावधान बनाए गए. किस पर कि प्रतिवादी को भी अपना दावा करने की अनुमति उसी वाद में दे दी जाए जो वाद वादी ने दायर किया है.
और न्यायालय को सक्षम बना दिया जाए कि वो मूल दावा ओरिजिनल क्लेम मेड बाय प्लेंटिफ and the claim made by defendant in the form of counter claim are set off. Let the court adjudicate, pronounce the judgment. Okay? न्यायालय को निर्णय सुनाने दिया जाए, न्यायालय को दोनों मामलों को न्याय निर्णित करने दिया जाए in a single suit. Okay? इस आधार पर है. So these are even set off is a counter claim because it is made against the claim made by the plaintiff. So it is counter claim. Literally, it is also counter claim. If a claim made by defendant doesn't fall in the category of set off, it is counter claim. यदि कोई दावा जो प्रतिवादी द्वारा किया गया है मुजराई के कैटेगरी में नहीं आता है तो क्या है? प्रतिदावा है. ओके? Effect of set off and effect of counterclaim. Both should be discussed here. The written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court. I am reading sub rule 2 of rule 6 set off. Set off में जो नियम 6 का उपनियम 2 में पढ़ना. Effect of set off. The written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court. Why set off is allowed? To enable the court to pronounce a final judgment in respect both of the original claim and of the set off. न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए काउंटर क्लेम अलाउ किया जाता है. सेट ऑफ मुजराई का दावा करने के लिए अनुमति दी जाती है. वह मुजराई जिसके लिए एक नया वाद हो सकता है प्रतिवादी द्वारा, उसको उसी वाद में ले आने दिया जाता है ताकि न्यायालय सक्षम हो सके कि वह मूल दावे और मुजराई के दावे दोनों पर निर्णय कर सके. सेम एज इफेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम रूल 6A सब रूल 2. Such counterclaim shall have the same effect as a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim and on the counter claim. It means it is clear why counter claim, why set off is allowed in the same litigation, in the same claim, in the suit instituted by plaintiff against the plaintiff, to enable the court, to empower the court to adjudicate the contrary claims by the adverse parties in the same litigation to avoid multiplicity of litigation. ये मुजराई या ये प्रतिदावा की अनुमति क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि एक ही मामले में न्यायालय दोनों पक्षकार के परस्पर विरोधी दावे की सुनवाई करके निर्णय दे सके, जिससे कि वाद बहुलता से बचा जा सके. ओके? एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टीज, और न्यायालयों को समुचित उपचार दिया जा सके. ओके? Before going to discuss the essential element of set off and of counterclaim, I would like to read the procedural provisions provided in Rule 6B to 6G, not 6A, 6B to 6G for counterclaim. So I am reading 6B. Counterclaim to be stated. Where any defendant seeks to rely upon any ground as supporting the right of counterclaim, he shall, in his written statement, state specifically that he does so by way of counterclaim. जहां कोई प्रतिवादी प्रतिदावे के अधिकार का समर्थन करने वाले किसी आधार पर निर्भर करता है,
वहां वह अपने लिखित कथन में यह विनिर्दिष्टतः कथन करेगा कि वह ऐसा प्रतिदावे के रूप में कर रहा। काउंटर्स क्लेम आर सेट ऑफ मस्ट बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड इन द रिटन स्टेटमेंट। लिखित कथन में प्रतिदावे या मुजराई का दावा विशेष तौर से होना चाहिए। ओके, रूल 6C, exclusion of counterclaim. I am reading rule 6C. Read with me from your Barrett. 6C. Where a defendant sets up a counterclaim and the plaintiff contends that the claim thereby raised are not to be disposed of by way of counterclaim, but in an independent suit. Who claims? The plaintiff. The plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counterclaim apply to the court for an order that such counterclaim may be excluded, and the court may, not shall. It means it is up to discretion of court, and the court may, on the hearing of such application, make such order as it thinks fit. Okay? जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और वह वादी यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा प्रतिदावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्रवाद में किया जाना चाहिए। यानी वादी यह कहता है कि प्रतिवादी ने जो प्रतिदावा किया है वो प्रतिदावे के रूप में न निपटाया जाए, बल्कि उसके लिए एक फ्रेश सूट फाइल किया जाए, अलग से शिफ्ट हो। वहां वादी प्रतिदावे के संबंध में विवादिकों के तय किए जाने से पूर्व, अंडरलाइन इट, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर सेटल्ड, नॉट आफ्टर सेटलिंग ऑफ इश्यूज। विवादिकों के विनिश्चय होने से पहले प्लेंटिफ कैन क्लेम, ठीक है, वादी दावा कर सकता है क्या, सर प्लेंटिफ में अप्लाई टू द कोर्ट, आवेदन कर सकता है क्या कि ऐसे प्रतिदावे का अपवर्जन कर दिया जाए, नए वाद में प्रतिवादी उसका दावा करे और तब न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जो ठीक समझेगा वो करेगा। एंड व्हाट एवर ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट इट इज नॉन अपीलेबल। Okay, it is non-appealable. Then it might be revisionable, because where there is no appeal lie against an order, then there may be a revision. यहाँ पे अपील नहीं होगी, ऑर्डर 43 में इसको नॉन अपीलेबल बनाया गया है, तो नॉन अपीलेबल है तो क्या होगा, इसके खिलाफ अपील हो सकती है। ओके, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट 6D. I am reading rule 6D. These are not important, but I like to clarify all the provisions of counterclaim. So why I am reading the rules? ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस नाते मैं सबको पढ़ रहा हूं। 6D. If in any case in which the defendant sets up a counterclaim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued, or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with. Very important point. 6D is important. यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिवादी का प्रतिदावा चलेगा, उस पर कार्यवाही की जा सकेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स the existence of counterclaim doesn't depend on the existence of claim made by the plaintiff. प्रतिदावे का अस्तित्व वादी द्वारा किए गए दावे के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता। It has its own existence. ये अपना स्वयं का अस्तित्व रखता है। 6E. Default of plaintiff to reply to counterclaim. 6E, very very important. If the plaintiff makes default, if plaintiff, who will reply the counterclaim? Who will reply the claim? Defendant. Defendant will have to reply the claim made by plaintiff through the plaintiff. If defendant in replying the claim made by plaintiff in plaint
making a counterclaim, makes a counterclaim or a set off, then counterclaim or set off to be replied by plaintiff. If plaintiff fails to reply to set off or counterclaim, then what would be? Then if he will fail to reply a counterclaim, then the effect will be arrived as per provided in rule 6E. Okay, 6E में लिखा हुआ क्या होगा? If the plaintiff makes default in putting in a reply to the counterclaim made by the defendant, the court may pronounce judgment against the plaintiff in relation to the counterclaim made against him or make such order in relation to the counterclaim as it thinks fit. Very very important point. वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध उस प्रतिदावे के संबंध में जो उसके विरुद्ध किया गया निर्णय सुना सकेगा या प्रतिदावे के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे. जस्ट एज द प्रोविजंस ऑफ रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, जो हम लोग इसके ठीक पहले की वीडियो में डिस्कस किए. आदेश 9 आदेश 8 नियम 10 के समान है. ओके, रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स रूल 6F 6 ठीक है. क्या लिखा हुआ है? वेयर इन एनी सूट अ सेट ऑफ आर काउंटर क्लेम फॉर बोथ 6F इज नॉट ओनली फॉर काउंटर क्लेम बट फॉर काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ फॉर बोथ 6F 6 जो है वो केवल प्रतिदावे के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए, मुजराई के लिए भी है. Where in any suit a set off or counterclaim is established as a defense against the plaintiff's claim and any balance is found due to the plaintiff or the defendant as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. भाई मुजराई करने के बाद जो बच जाएगा प्रतिवादी से कहा जाएगा वादी को दे. क्लेम सेटिस्फाइड हो गया काउंटर क्लेम से, कुछ और बच गया काउंटर क्लेम थोड़ा सा, तो वादी को कहा जाएगा प्रतिवादी को रिटर्न कर दे. जहां किसी वाद में वादी के दावे के विरुद्ध प्रत्यक्षा के रूप में मुजरा या प्रतिदावा सिद्ध कर दिया जाता है और कोई ऐसा अतिशेष पाया जाता है, सिद्ध हो गया, एडजस्ट हो गया, दोनों क्लेम एडजस्ट हो गए, फिर भी किसी का बच गया, या तो वादी का थोड़ा सा बच गया या प्रतिवादी का थोड़ा सा बच गया, जो यथास्थिति वादी या प्रतिवादी को सौंध्य है, वहां न्यायालय ऐसे पक्षकार के पक्ष में जो ऐसे अतिशेष के लिए हकदारों निर्णय दे सकेगा. ठीक है. इट मीन्स A plaintiff claims 5 lakh rupees against B. B makes a set off. B claims a set off of 3 lakh rupees. Both claims are proved. Then there will be 2 lakhs balance in favor of A to be given by B to A. है ना? अगर ए ने 5 लाख रुपए का दावा किया वादी के तौर पर, किस पर? बी प्रतिवादी के विरुद्ध. बी ने उसमें से 3 लाख रुपए मुजराई के तौर पर दावा कर दिया और दोनों ने अपने अपने दावे सिद्ध कर दिए. तो 2 लाख रुपए जो बचेंगे ए के पास बचेंगे, ए का बैलेंस हो जाएगा ना, तो बी को आदेश किया जाएगा कि वो 2 लाख रुपए ए को रिटर्न करे. यही लिखा होगा 6F में. ओके, इट इज नॉट मोर इंपोर्टेंट. 6G rules relating to written statement to apply. 6G. The rules relating to a written statement by a defendant shall apply to a written statement filed in answer to counterclaim. Very very important. Because reply to set off or reply to counterclaim by plaintiff is on the nature of the reply a kind of written statement to be presented by plaintiff. Generally written statement is presented by defendant, but if defendant makes a counter claim or a set off, then the counter claim or set off claimed by defendant to be answered by plaintiff, and the answer given to the counter claim or to the set off claimed by defendant is treated as written statement, and all the rules of written statement would be applied to such answer, such reply. जब प्रतिवादी वाद पत्र के जवाब के रूप में
क्या करता है, लिखित कथन देता है, लेकिन लिखित कथन में वो मुजराई या प्रतिदावे का दावा कर दिया। तो मुजराई या प्रतिदावा, जिसका दावा प्रतिवादी ने किया, उसका उत्तर कौन देगा, वादी। वादी जो उत्तर देगा उसे लिखित कथन के तौर से माना जाएगा। ओके, तो सामान्यतः लिखित कथन कौन पेश करता है, प्रतिवादी। लेकिन अगर मुजराई या प्रतिदावा किया गया प्रतिवादी द्वारा, तो उसका उत्तर जो वादी के द्वारा दिया जाता है उसे भी हम लिखित कथन ही कहते हैं, और उस पर लिखित कथन के सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है। 6G एंड Rule 3 of sub rule 3 of Rule 6. The rules related to a written statement by a defendant apply to a written statement in answer to a claim of set off. Rule 6 sub Rule 3. All rules of written statement shall be applied to the answer of set off given by plaintiff. Rule 6 sub Rule 3. Okay? नियम 6 के उपनियम 3 में लिखा हुआ है। While all the rules of written statement shall be applied to the answer given by the plaintiff to a counter claim, to set off to counter claim, shall be applied, provided in Rule 6G. Rule 6G, Rule 6 sub Rule 3. ये लिखा हुआ है। These are important. Now come on. The essential element of set off provided in Rule 6 sub Rule 1, and read with me very carefully. Okay, I am reading Rule 6 sub Rule 1, which provides the essential element of set off. अब मैं नियम 6 पढ़ रहा हूं, नियम 6 का उपनियम 1, जो कि मुजराई के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं। ओके, where in a suit for the recovery of money pointed is as one. Okay, इसको एक के तौर पे लिखिए। ये देखिए, where in a suit for the recovery of money, one, I have pointed it 1. The defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money, ascertained sum of money pointed as 2, legally recoverable by him from the plaintiff pointed as 3, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court pointed as 4, and both parties feel the same character as they feel in the plaintiff's suit point as 5. The defendant may at the first hearing of the suit pointed at 6, but not afterwards unless permitted by the court, presents a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. So there are 6 elements on the basis of the language of Bayer Act. Okay, Bayer Act की लैंग्वेज से अगर हम देखें तो यहां कुल मिलाकर के 6 आवश्यक तत्व हैं। बट इफ यू विल डिस्क्राइब द 6 essential element, then it would be 8 essential element. There would be 8 essential element of set off. ठीक है, इसको हिंदी में भी देखते हैं। जहां तक धन की वसूली के बाद में 1, प्रतिवादी न्यायालय के अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन, 2, की कोई अभिनिश्चित राशि, 3, जो वह वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है, 4, वादी की मांग के विरुद्ध मुजरा करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं, 5, वही हैसियत रखते हैं जो वादी के वाद में उनकी है, ये 5, वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, 6, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा न दे दी गई हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेयर एक्ट प्रोविजन, बेयर एक्ट के भाषा के अनुसार
मुजराई के लिए 6 आवश्यक तत्व हैं, जिनकी व्याख्या करने पर ये कुल 8 निकल के आते हैं। ओके, सो देयर आर 8 essential element to be written by you, and these all have been mentioned in the notes provided by PVP। पंकज विधि प्रवाह द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ओके, इन इंग्लिश मीडियम एंड इन हिंदी मीडियम बोथ। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी लिखी हुई हैं द कंडीशंस, देयर आर 8 कंडीशंस। ओके, सो व्हाई द इंस्टीट्यूट advises you to demand for notes also along with the demand of CDs। इसी नाते आपसे कहा जाता है कि CD के साथ साथ नोट्स भी लीजिए। ओके, सो डिस्कस, लेट मी शो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट थ्रू माय नोट्स। ओके, हमें जो है आवश्यक तत्वों को दिखाने दीजिए किससे, नोट्स के जरिए। पहला क्या है, वादी का वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए। यू शुड रीड इलस्ट्रेशन ई अटैच्ड विद रूल 6। देयर आर 8 illustrations have been provided with rule 6 in the Baer Act। ठीक है, ये देखिए इतने सारे illustrations दिए गए हैं Baer Act में। Then to make it clear that the suit must be of a suit of recovery of money, okay, you must read the illustrations। okay, like illustration A sues B for compensation on account of trespass। It appears that it is a suit for trespass but not for recovery of money, but here it is clarified by the legislature। B holds a promissory note for ₹1,000 from A and claims to set off that against any sum that A may recover in the suit, set off that amount against any sum that A may recover in the suit। B may do so for as soon as A recovers both sums are definite pecuniary demands। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। क अतिचार की बाबत प्रतिकर के लिए ख पर वाद लाता है। बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। क अतिचार की बाबत प्रतिकर के लिए ख पर वाद लाता है। ख के पास क का 1000 रुपए का वचन पत्र है और ख यह दावा करता है कि यह रकम किसी ऐसी राशि से जो वाद में क को अधिनिर्णित की जा मुजरा कर दी जाए। ख ऐसा कर सकेगा क्योंकि जैसे ही क के हक में अधिनिर्णय हो जाता है वैसे ही दोनों राशि निश्चित धर्म संबंधी मांगे हो जाती हैं। While illustration E must be compared with the illustration C। illustration E को C से कंपेयर करिए। A sues B on a bill of exchange। B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he claims to set off। The amount not being ascertained cannot be set। ख पर विनिमय पत्र के आधार पर क वाद लाता है। ख विकथन करता है कि, ये पढ़िए, ख विकथन करता है कि क ने ख के माल का बीमा कराने में सदोष उपेक्षा की है और क उसे प्रतिकर देने के लिए दायी है जिसकी मुजराई का दावा ख करता है। यह रकम अभिनिश्चित न होने से मुजरा नहीं की जा सकती। तो दृष्टांत ग को दृष्टांत अंगों से तुलनाकृत करिए, तुलना करिए इसकी। ओके, द नेक्स्ट एलिमेंट इज, so we have
अंडरस्टैंड द 2 पॉइंट्स। वादी का धन वाद वसूली के, वादी का वाद धन की वसूली के लिए होना चाहिए और धनराशि निश्चित होनी चाहिए। तीसरा, धनराशि विधि के प्रावधान के अनुसार वसूल करने योग्य होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव बीन टाइम बार्ड और अदरवाइज नॉट रिकवरेबल, इट मस्ट बी रिकवरेबल। ओके। 4 और 5, यदि एक से अधिक वादी हो तो धनराशि सभी वादियों से वसूल योग्य होनी चाहिए। 5वां, यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो तो धनराशि सभी प्रतिवादियों द्वारा वसूली योग्य होनी चाहिए। लेट मी इलस्ट्रेट दीज 2 पॉइंट्स। These have been illustrated. Illustration F and G. A and B sued C for 1,000 rupees. C cannot set off a debt due to him by A alone. Just next illustration G. A sues B and C for ₹1,000. B cannot set off a debt due to him alone by A. ठीक है, ये इलस्ट्रेशन देखिए 4 और 6। क और ख 1,000 रुपए के लिए ग के विरुद्ध वाद लाते हैं। ग उस ऋण को मुजरा नहीं कर सकता जो केवल क द्वारा उसे शुद्ध है। ठीक उल्टा, ख और ग के विरुद्ध 1,000 रुपए के लिए क वाद लाता है। ख उसे अपने ऋण का मुजरा नहीं कर सकता जो अकेले उसे क से ही शुद्ध है। ओके, सो दीज 2 इलस्ट्रेशंस इलस्ट्रेट रिस्पेक्टिवली द पॉइंट 3 और 4। ठीक है, तीसरे और चौथे पॉइंट को, चौथे और 5वें पॉइंट को इलस्ट्रेट करते हैं। 6वां पॉइंट, धनराशि न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। 7वां, वादी और प्रतिवादी की हैसियत मुजरा के दावे में भी वही होती है जो वादी के वाद में होती है। ओके, तो इसका इलस्ट्रेशन 7वें पॉइंट का, 7वें पॉइंट की इलस्ट्रेशन ए एंड बी शुड बी रीड केयरफुली। Illustration A and B, different character. Okay, so you should read illustration A and B to understand the nature of same character. Okay, आप इनको पढ़ने के लिए इसको समझिएगा। और आखिरी है the 8th point, 8th condition क्या है? प्रतिवादी मुजरा की राशि की मांग लिखित कथन के अंतर्गत वाद की प्रथम सुनवाई पर ही करे, उसके उपरांत उसे ऐसा करने के लिए न्यायालय से अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद वो नहीं कर पाएगा, न्यायालय से अनुज्ञा, वही सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, रूल 9 ऑर्डर 8। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शो द कंडीशंस इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए इनको। द कंडीशंस, a defendant may claim set off if the following conditions are satisfied. The suit must be for the recovery of money, illustration E. The sum of money must be ascertained, illustration C and D. Such sum must be legally recoverable. It must be recoverable by the defendant or by all the defendants more than one, illustration G and H. It must be recoverable by the defendant from plaintiff or from all the plaintiffs if more than one, illustration H. It must not exceed the pecuniary jurisdiction of the court in which the suit is brought, and both parties must feel in the defendant's claim to set off the same character as they feel it in the plaintiff's suit, illustration A and B. Okay, there are 7 points, and 8th point is that set off must be claimed either with written statement or at the first hearing of defendant, but later on with permission of court. ओके, ये 8वां पॉइंट यहां होना चाहिए जो नहीं लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। अब हम लोग सेट ऑफ का इफेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट, क्लेम ऑफ सेट ऑफ, defendant is treated as plaintiff and plaintiff is treated as defendant. ओके, और अगर ये दोनों ही, यानी कि जो मुजराई का दावा करता है प्रतिवादी, वो मुजराई के दावे के लिए क्या माना जाएगा? वादी माना जाएगा, और उसका उत्तर देने वाला वादी प्रतिवादी माना जाएगा, और न्यायालय सक्षम हो जाएगा। व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिक्टेटेड, दैट कोर्ट वुड बी कॉम्पिटेंट, वुड बी इनेबल्ड
to pronounce the judgment on the basis of original claim and on the basis of claim for set off. मुजराई के दावे और वास्तविक दावे दोनों के आधार पर न्यायालय निर्णय करने योग्य हो जाएगा और तब उसके अनुसार निर्णय करके डिक्री पारित कर दी जाएगी। ओके, जब प्रतिवादी मुजरा करने का तर्क देता है तो जिस राष्ट्र के संदर्भ में वो मुजरे की मांग कर रहा है उसके संदर्भ में वह वादी माना जाएगा। इट हैज बीन मेंशन्ड इन माय नोट्स। ठीक है, नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है। यदि वादी का वाद खारिज कर दिया जाता है तो प्रतिवादी के दावे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यदि वह अपने मुजरे के दावे को साबित कर देता है तो उसके पक्ष में डिक्री पारित की जा सकेगी। आर्डर 20 रूल 19 सब रूल 1। ओके, अगर आर्डर 20 Rule 19, sub-rule 1. Where the defendant has been allowed a set-off or a counter-claim against the claim of the plaintiff, the decree shall state what amount is due to the plaintiff and what amount is due to the defendant, and shall be for the recovery of any sum which appears to be due to the either party. ठीक है, आदेश 20 नियम 19 में लिखा हुआ है कि जहां प्रतिवादी को वादी के दावे के विरुद्ध मुजरा या प्रतिदावा अनुज्ञात किया गया है वहां डिक्री में यह कथन होगा, डिक्री में लिखा जाएगा कि वादी का कितना धन प्रतिवादी पर और प्रतिवादी का कितना धन वादी पर साबित हुआ और फिर जो बचेगा उससे दूसरे को दिला दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ क्लेम्स शैल बी ट्राइड एट साइमल्टेनियसली। दोनों ही दावे एक साथ विचारित किए जाएंगे। ठीक है, और मुजरे के वाद में लिखित कथन का प्रभाव वाद पत्र के रूप में और वाद पत्र का प्रभाव लिखित कथन के रूप में होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ठीक है, कि सेटऑफ में जो क्लेम ऑफ सेटऑफ है इट वुड बी ट्रीटेड एज प्लेंट एंड आंसर टू द सेटऑफ वुड बी ट्रीटेड एज रिटन स्टेटमेंट। सो वी हैव डिस्कस्ड दीज। नाउ कम ऑन इक्विटेबल सेटऑफ। व्हाट इज इक्विटेबल सेटऑफ? Here you should care order 20 rule 19 sub rule 3, the last second rule 3. The provisions of this rule means order 20 rule 19 shall apply whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 or otherwise. ध्यान से देखिए, आदेश 20 नियम 19 के उपनियम 3 में लिखा मिलेगा आपको कि आदेश 20 का नियम 19 लागू होगा। इस नियम के उपबंध लागू होंगे चाहे वह मुजरा आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुज्ञेय हो। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ अदरवाइज? अन्यथा, it means or otherwise. It means admissible otherwise. It means a set off may be admissible otherwise than the provisions of order 8 rule 6. ठीक है, इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि आदेश 8 नियम 6 के अलावा भी मुजराई के दावे को स्वीकार किया जा सकता है, उसे अलाउ किया जा सकता है। तो इस नाते इसे साम्यिक मुजरा कहा गया। दिस इज कॉल्ड एज इक्विटेबल सेट ऑफ। व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ? व्हाट इज इक्विटेबल सेट ऑफ? Equitable set off has its origin from England by the Chancellery Court. Okay, so why it is called an equitable set off? Okay, and the source of equitable set off in CPC is the term admissible otherwise provided in order 20 rule 19 sub rule 3. और सिविल प्रक्रिया संहिता में इसका आधार
आदेश 20 नियम 19 का उपनियम 3 है, जिसमें लिखा है अन्यथा अनुज्ञेय। ठीक है। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ क्लार्क वर्सेस रुथना वेलू 1865 एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स आर एज। केवल धनराशि संबंधित दावों का ही सामयिक मुजरा हो सकता है। इक्विटेबल सेट ऑफ इज अलाउड ओनली in case of claim of amount, not claim of other rights. अन्य अधिकारों को क्लेम करेंगे तो उसमें सेट ऑफ कैसे होगा? धनराशि का दावा होना चाहिए। The amount might be uncertain, धनराशि अनिश्चित भी हो सकती है। ऐसी धनराशि का वाद हेतु उसी संव्यवहार में उत्पन्न हुआ हो जिसके लिए वादी द्वारा वाद लाया गया हो। The cause of action for the equitable set off must be arised from the same transaction from which the claim of plaintiff has been arised. It means origin of both the claims, claim by plaintiff and equitable claim of set off by defendant must have been originated from the common transaction. एक ही संव्यवहार से दोनों पैदा हुए होने चाहिए। Okay? And the other points are as no court fees is required for equitable set off. It is not required that the amount must be recoverable by law, except the provisions of Limitation Act, and it is discretionary power to the court to allow the set off or not, because it is equitable set off. Defendant has no right to get benefit of equitable set off. ठीक है। प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह सामयिक मुजराई को स्वीकार करे या न करे। तो आपने देख लिया कि केवल धनराशि संबंधी दावा हो, वह धनराशि निश्चित या अनिश्चित कुछ भी हो सकती है, किंतु उसी संव्यवहार से हो। अब इस पर मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट दिस। ओके, इक्विटेबल सेट ऑफ टू बी इलस्ट्रेटेड एज that where A sues B to recover rupees 50,000 under a contract from B. A sues B to recover rupees 50,000 under a contract. B can claim set off towards damages sustained by him due to breach of the same contract by A. एक संविदा हुई जिस संविदा में B को 50,000 रुपए A को देने थे, तो उस संविदा का प्रवर्तन के लिए ये वाद लाता है कि बी उसे 50,000 रुपए दे। बी उसी में दावा कर सकता है कि ये उसे मुआवजा दे जो ये के द्वारा संविदा भंग करने से बी को दे हैं। दिस इज इक्विटेबल सेट ऑफ। द सेकेंड इलस्ट्रेशन इज व्हिच इज वेरी फेमस। इन अ सूट बाय अ washerman for his wages, the defendant employer may set off the price of the cloth lost by the plaintiff. Plaintiff was a washerman, an employee of the defendant, sues on defendant for wages. B can claim equitable set off. Equitable set off the price of cloth lost by the plaintiff. ठीक है। एक मामले में कपड़ा धुलने वाला एक कर्मचारी अपने मालिक के विरुद्ध अपनी वेतन की बात करता, वेतन की मांग करता है, सर्टेन अमाउंट की मांग करता है। उसके नियोजक ने उसके द्वारा जो कपड़े नष्ट कर दिए गए थे उनके मूल्य के मुजराई की बात कर देता है। यहां मुजराई का दावा निश्चित धनराशि का नहीं है, सो इट इज नॉट लीगल सेट ऑफ, because amount claimed as set off is not a certain amount, so it is not legal set off, but it is equitable set off.
ये सामयिक मुजराई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ्स। ओके, लीगल और विधिक और सामयिक मुद्रा में अंतर पढ़ लेते हैं। देन वी विल डिस्कस काउंटर क्लेम। ओके, विधिक मुद्रा आदेश 8 नियम 6 में है। लीगल सेट ऑफ इज इन ऑर्डर 8 रूल 6 while इक्विटेबल सेट ऑफ इज इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 and it is originated from the equity court. Okay, the amount claimed as set off must be ascertained. Here might be uncertain also. ठीक है, यहां धनराशि निश्चित होनी चाहिए, यहां अनिश्चित भी होनी चाहिए। Here the claim of set off is as right. Here equitable claim of set off is claim of equitable set off is subject to discretion of the court. It is not required that the claim of set off must be arised out of the same transaction from which the claim of plaintiff is arised. इस मामले में वादी के दावे और प्रतिवादी के मुजराई के दावे का एक ही समव्यवहार उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। बट इन केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन सामयिक मुजराई के दावे के लिए दोनों का एक ही समव्यवहार उत्पन्न होना आवश्यक है। कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड, कोर्ट फीस इज नॉट रिक्वायर्ड। न्यायालय का शुल्क यहां देना पड़ेगा, यहां नहीं देना पड़ेगा। ओके, नाउ कम ऑन काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम though the provisions of counter claim have been inserted in 1976, but Supreme Court in the case of Lakshmi Das versus Naina Bhai 1954 held that the court has power to treat the counter claim as a cross suit and hear the original suit counter claim and hear the original suit and the counter claim together if the counter claim is properly stamped. भले ही प्रतिदावे संबंधी प्रावधान 1976 में जोड़े गए, किंतु 1954 के मामले में लक्ष्मीदास बनाम नैना भाई 1954 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रतिदावा जो मुजराई से भिन्न है, प्रतिदावा को भी मूल दावे के साथ विचारित किया जाए। कब? जबकि प्रतिदावे पर भी समुचित स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है, यानी वाद कोर्ट फीस पे की गई है। ओके, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में बी मेड for a claim of any right against the defendant, against the plaintiff by the defendant, okay, other than a claim of ascertained amount. If it is ascertained amount, then it is set off. तो निश्चित धनराशि के दावे से भिन्न किसी भी अधिकार का दावा अगर प्रतिवादी द्वारा किया गया, then it is counter claim. Okay, it must be arised either before institution of suit or before or after institution of suit, but before presentation of written statement or at the time of presentation of written statement. ओके, प्रतिदावा का आधार या तो वाद संसित करने से पहले हो गया हो या वाद संसित करने के बाद हुआ हो, किंतु लिखित कथन पेश करने के समय या उससे पहले उत्पन्न होना चाहिए। बिकॉज काउंटर क्लेम इज मेड थ्रू द रिटन स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि प्रतिदावा लिखित कथन के साथ किया जाता है, के माध्यम से किया जाता है, तो तब तक उसका राइट होना जरूरी है। इट मे बी क्लेम्ड एज डैमेजेस और ऑफ एनी अदर नेचर। ठीक है, इट माइट बी नेचर ऑफ कंपनसेशन और ऑफ अदर नेचर। ये चाहे तो नुकसानी की प्रकृति का हो सकता है या अन्य प्रकृति का हो सकता है। एंड इट मस्ट नॉट बी बियॉन्ड द पेक्यूनियरी जुडिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, ये उसके समय सीमा, उसके क्षेत्राधिकारता से नीचे का होना चाहिए। ओके, द इफेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम इज
Counterclaim is treated as a plaint by the defendant against plaintiff, and its answers given by plaintiff is treated as WS by retention by plaintiff against the defendant. प्रतिदावे को प्रतिवादी द्वारा एक वाद माना जाता है जो कि वादी के विरुद्ध होता है, और वादी उसका जब उत्तर देता है उससे लिखित कथन माना जाता है। हम लोग उस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। ओके, यदि वादी का वाद खारिज कर दिया जाए, रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो भी प्रतिदावा का निर्णय होगा। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस आल्सो। इफ claim of plaintiff is disallowed, rejected, dismissed, okay, even then counter claim might be proceed. हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, we have already discussed this point also. So the last point we have to discuss here, the difference between set off and counter claim. These are as first, set off is a kind of defense pleaded by plaintiff, defendant against the claim made by plaintiff. Set off is just a defense, while counter claim may be a substantive claim. So it is claimed as a sword, while this is claimed as shield. प्रतिदावा जो है वो एक तलवार के रूप में किया जाता है, एक वाद के रूप में किया जाता है, जबकि मुजराई जो है एक बचाव के रूप में होती है, ढाल के रूप में होती है। जैसे ए ने कहा बी से, ए ने एक मुकदमा करता बी पर कि बी पर उसका 5 लाख रुपए बकाया है। बी कहता नहीं, मैंने 4 लाख रिटर्न कर दिया। इट इज अ डिफेंस, इट इज सेट अप, इट इज डिफेंस। ए सूज अगेंस्ट बी फॉर 5 लाख रुपीज। बी सेज दैट, बी क्लेम्स दैट ही हैज ऑलरेडी रिटर्न्स 4 लाख रुपीज। This is a shield, this is a defense. But if B claims no, never, he has never received any amount from A, but even he has given 8 lakh rupees to A, and he claims that the amount to be decreed in favor of B against A, then it would be counter claim. बी कह दे कि नहीं, मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं, बल्कि मेरा 8 लाख इन पे है, ये काउंटर क्लेम है, बिकॉज इट इज नॉट क्लेम्ड एज शील्ड, इट इज क्लेम्ड एज स्वॉर्ड। इसको तलवार के रूप में दावा किया गया है। ओके, सेकेंड थिंग इज द अमाउंट मस्ट बी असर्टेन्ड। हियर इट मे बी असर्टेन्ड, अनसर्टेन्ड। हियर मस्ट बी अ सूट ओनली फॉर रिकवरी ऑफ मनी, हियर मे बी एनी काइंड ऑफ सूट। ओके, यहां केवल निश्चित धनराशि की बात होनी चाहिए, यहां निश्चित तरह से कुछ भी हो सकता है। यहां केवल धनराशि, धन वसूलने का बात होना चाहिए, यहां कोई बात हो सकता है। ओके, जनरली द अमाउंट क्लेम्ड बाय डिफेंडेंट इज लेस देन द अमाउंट क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ, सो व्हाई इट कुड बी सेट ऑफ। यहां सेट ऑफ में क्या होता है कि वादी द्वारा जो धन का दावा किया जाता है उसके बराबर या उससे कम धन का दावा करता है प्रतिवादी, ताकि वो सेट ऑफ हो सके। यहां उससे ज्यादा धन का दावा होता है। ओके, हियर लिमिटेशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट बाय प्लेंटिफ, व्हाइल हियर लिमिटेशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट। यहां परिसीमा का समय लिखित कथन के पेश किए जाने से गिना जाता है, जबकि यहां वादी के वाद पत्र से गिना जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, एंड वी हैव थॉरली डिस्कस्ड द प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट, essential elements and effect of set off, equitable set off and counterclaim, and we have adequately differentiate all the three points. ठीक है, हम लोगों ने सम्यक तरीके से इन तीनों के प्रावधानों के बारे में, इनकी आवश्यक शर्तों के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में, इनकी प्रक्रिया के बारे में और इन तीनों के पारस्परिक अंतर के बारे में अध्ययन किया. सो थैंक यू. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.